A very warm welcome to my YouTube channel Grow With Me. My name is Anshul Tyagi, and today we will be starting with IGNOU BPCC 101 Block 2 Unit 3 Perception. So guys, this particular video is the part 3. So part 3 of this particular unit. So I would recommend you to view or watch the last two parts first for more and better conceptual clarity. And without wasting our time, let's get started. So guys, on my YouTube channel, you would be finding very informative and productive content. So if you like it helpful or in any way, so please do subscribe the channel and do hit the like button and bell button for more updates. Now, without wasting our time, let's get started with the last portion of this particular unit and the last part of this particular unit. So the last thing that we need to discuss today is basically the factors affecting perception. Okay, so this is the last thing that which was left with for me to clear for you. So let's get started with it. So the very first thing that we would be understanding in this particular topic is perceptual constancy. So constancy with basically a perceptual constancy is it is the part of our perceptual ability to see familiar objects as having standard shape, size, colors, etc. What happens is, let me change my color first. Yes. So perceptual constancy is basically part of our perceptual ability. Means जो हमारी क्षमता है, जो हमारी ability है to perceive our surrounding, उसी का part है perceptual constancy. इसका मतलब होता है कि जो भी हमें familiar objects, मतलब कि जो similar objects होते हैं, हम उनको ऑब्जर्व कर लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल वी सी सम सर्टेन फेमिलियर ऑब्जेक्ट, तो हम ये परसीव कर लेंगे, हमें इंटरप्रेट कर लेते हैं कि उन सबके पास उनका जो साइज शेप कलर है वो स्टैंडर्ड है, मतलब एक यूनिफॉर्म है और हर एक में वो ही मिलेगा. सो दिस इज द परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. कांस्टेंट मतलब कि जो हमारी जो वर्ड है परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी, उसमें जो कांस्टेंट वर्ड है उसका मतलब होता है एक जैसा रहना, स्टेबल रहना. तो यहाँ पे हमारा वही पार्ट आता है कि जब हम परसीव करते हैं तो हमारे एक टेंडेंसी होती है कि जो भी फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स मिलते हैं हम सोचते हैं कि जो भी अगर वो क्योंकि वो सिमिलर या फिर फेमिलियर ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनका जो साइज शेप और कलर या और कोई फीचर जो होगी वो स्टैंडर्ड होगी या स्टेबल होगी, हमेशा हर बारी वो ही रहेगी. इट enables one to perceive familiar stimuli as constant. Because of this particular phenomena or tendency of perceptual constancy, it basically makes one to perceive familiar stimuli as constant. तो इसकी वजह से हम हर एक स्टिमुलाई जो कि एक जैसा दिखता है उसको कांस्टेंट समझ लेते हैं, मतलब कि एक जैसा हमेशा के लिए समझ लेते हैं. With respect to its features like size, shape, color, brightness, irrespective of change in environment, location, characteristics of the stimuli. हम उनकी फिजिकल फीचर्स को या कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को देख के हम उनको एक जैसा बता देते हैं, कांस्टेंट बोल देते हैं कि ये जो स्टिमुलाई है ये ऐसा कांस्टेंट ही रहेगा बिकॉज ऑफ इट सिमिलैरिटी और फेमिलैरिटी. ओके, हम इस टाइम पे इसके साइज शेप कलर के ध्यान बस उनको अपने परसेप्शन के अंदर रखते हैं और उनके जो एनवायरनमेंट है, लोकेशन है या अदर कैरेक्टरिस्टिक्स है हम उनको बेसिकली अपनी कंसिडरेशन में लेना ही नहीं चाहते हैं. तो ऐसी वाले जब हम कांस्टेंट परसीव करने लग जाते हैं, हर सिमिलर चीज को एक जैसा ही मानते हैं और चेंज से थोड़ा सा डरते हैं, तो ऐसी वाली सिचुएशन को कहते हैं परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी. Okay guys, let's move further. Just a second, let me change the slide. Okay, so the three types of perceptual constancy are, जो तीन तरीके की हमें perceptual constancy बताई जा रही है, हमें मेजरली दिखती है, वो है size constancy, shape constancy एंड कलर एंड ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी. हम इन तीन चीजों के अंदर जो हम कांस्टेंट मान के चलते हैं उनको देखते हैं. पहला है साइज कॉन्स्टेंसी. ओके, सो ड्यू टू दिस
बिकॉज ऑफ साइज कॉन्स्टेंसी हम क्या करते हैं, आर ब्रेन परसीव्स एनी इमेज इन आर सराउंडिंग एज ऑफ नॉर्मल साइज, दो आर रेटिनल इमेजेस इज टू स्मॉल इफ कंपेयर टू व्हाट वी परसीव्ड एज। क्योंकि हम हर एक स्टिमुलाई को, जो स्टिमुलाई फेमिलियर दिखता है, जो एक जैसा दिखता है, हम उसका साइज वगैरह सब कुछ स्टैंडर्ड मान लेते हैं। तो क्या होता है साइज कॉन्स्टेंसी में, हम जो इमेज देख रहे हैं, भले ही वो हमारे रेटिनल इमेज, हमारे रेटिना के ऊपर उसकी जो इमेज बन रही है वो स्मॉल है, और हम उसको जो है हमेशा नॉर्मल साइज बोलते हैं, क्योंकि हम समझ लेते हैं असलियत में तो उसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो साइज है वो स्मॉल है, पर हम उसको नॉर्मल साइज कंपेयर कर लेते हैं बाकी फेमिलियर स्टिमुलाई से। ओके, सो दिस इज द साइज कॉन्स्टेंसी। हम सिर्फ एक कांस्टेंट साइज, एक नॉर्मल साइज को परसीव करते रहते हैं, भले ही हमारी जो इमेज बन रही है ब्रेन में, या फिर जो हमारी आईज के अंदर रेटिनल इमेज बन रही है, वो एक्चुअल में छोटी इमेज है, या स्टिमुलाई की जो साइज है वो छोटी है, पर बिकॉज ऑफ दिस साइज कॉन्स्टेंसी हम उसको नॉर्मल साइज के अंदर ही ले लेते हैं, जैसे बाकी के सिमिलर नॉर्मल साइज वाले स्टिमुलाई होते हैं। तो इसकी वजह से बेसिकली परसेप्शन गलत भी जा सकती है। ओके, क्योंकि हम फिक्स हो जाते हैं एक 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 पर्टिकुलर साइज के ऊपर, हम अपने दिमाग को रोक देते हैं, फिक्स कर देते हैं कि ये क्योंकि बाकी स्टिमुलाई जैसा दिख रहा है तो इसका भी यही साइज होगा, नॉर्मल होगा, भले ही वो छोटा हो। ओके, नाउ कम्स द शेप कॉन्स्टेंसी। So shape constancy includes due to, over here it will come, due to this phenomena one perceive the shape of object as same irrespective of the fact that at different angle its shape changes, and so thus a retinal image। हम क्या करते हैं शेप कॉन्स्टेंसी में, ये भी एक और प्रॉब्लम है, या फिर हमारी एक एबिलिटी बन जाती है परसेप्शन के अंदर, कि अगर हमें फेमिलियर चीजें मिलती हैं या सिमिलर सी चीजें मिलती हैं, तो हम क्या करते हैं, हम जो भी भले ही एक स्टिमुलाई, बहुत सारे फेमिलियर चीजें हैं, ओके, एक हमारे सामने ऑब्जेक्ट्स हैं और सारी जो है फेमिलियर चीजें हैं, पर कोई एक एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई ऐसा है जिसको हम नॉर्मल बोल रहे हैं, नॉर्मल शेप का बोल रहे हैं जैसे बाकी हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, उस बात को साइड में रख के कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या स्टिमुलाई की जो शेप है वो अलग अलग एंगल से अलग अलग आ रही है, और उसी वजह से हमारी जो रेटिनल इमेज है वो भी चेंज हो रही है एज पर द एंगल, पर फिर भी हम उसके उस फैक्ट को भी इग्नोर कर देते हैं, और हम एक चीज सोचते रहते हैं दैट द शेप ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टिमुलाई is also constant or stable or normal as compared to the other familiar stimuli. Okay, so example, door and its opening movement by Atkinson and Hilgard in 2009। तो इन साइकोलॉजिस्ट ने एक एग्जांपल दिया शेप कॉन्स्टेंसी का, डोर, एक तो डोर जो बंद है और उसकी मूवमेंट, हम उसको अलग अलग एंगल्स, जब हम एक डोर को बंद करके खोलते हैं तो वो पूरा का पूरा, ये मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री वो मूव कर जाता है, हर एंगल पे उसकी शेप अलग बदलती है, पर वी व्हाट वी परसीव इज बिकॉज ऑफ शेप कॉन्स्टेंसी, हम हमेशा यही परसीव करते हैं कि वो जो उसकी शेप है वो ही रहेगी जो एक स्टिल डोर की रहेगी। तो बिकॉज ऑफ शेप कॉन्स्टेंसी प्रॉब्लम एग्जिस्ट in our perception, and it can lead to misperception also. Now comes the color or brightness constancy. So what happens is, irrespective of the change in wave of length of light in our retina and also the texture of an object, one perceives the color and brightness of stimuli constant throughout the process. So what happens is, हम एक प्रोसीजर में हैं, हम पूरा प्रोसेस चल रहा है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट को या स्टिमुलाई को परसीव करते हैं, पर लाइट की जो रिफ्लेक्शन आती है उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर, और बेसिकली द चेंज इन द टेक्सचर ऑफ द ऑब्जेक्ट, हम उन सारी चीजों को इग्नोर करके हम एक स्टैंडर्ड कलर को या ब्राइटनेस को ही परसीव करते हैं, और फिर यहाँ पे दोबारा से हमें कलर और ब्राइटनेस कॉन्स्टेंसी देखने को मिलती है। सो ये भी हमारे परसेप्शन को हैम्पर कर सकता है। नेक्स्ट कम्स आवर टॉपिक which is, let me change the slide, okay, the factors
अफेक्टिंग परसेप्शन। तो वो फैक्टर्स जिनकी वजह से हमारी परसेप्शन के ऊपर इम्पैक्ट आता है, अब ये कुछ हमारे कुछ फैक्टर्स है वो हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल द वेरी फर्स्ट इज मोटिवेशन एंड नीड्स। मीन्स हमारी ज़रूरतें क्या है और हम किस पर्टिकुलर स्टिमुलाई या इंफॉर्मेशन के लिए मोटिवेटेड है। ओके, second comes the expectations and perceptual expectancy। means हम क्या एक्सपेक्टेशन लेके बैठे हैं और बेसिकली क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं एक पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर हमारे बिहेवियर से या हमारे परसेप्शन से। ओके, नेक्स्ट कम्स इमोशन। ओके, द इमोशन अंडर विच वी आर राइट नाउ गोइंग इन। okay, because of that also our perception hampers। next comes experience। so experience plays a major role because बहुत सारे प्रोसेसिंग अप्रोच के अंदर, जैसे कि हमने पार्ट 1 वाली वीडियो में देखा था, तो वहां पे हमने देखा था कि बहुत सारे बेसिकली बहुत सारे तो नहीं, एक अप्रोच में हम अपने एक्सपीरियंस की वजह से भी चीजों को परसीव करते हैं। ओके, सो जहाँ पे एक्सपीरियंस आ जाता है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने का वहाँ पे बेसिकली उसका जो है चार्ज बन जाता है। नेक्स्ट कम्स कल्चर। कल्चर सी इन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कल्चर इन्फ्लुएंसेस आर परसेप्शन, क्योंकि हम उस कल्चर के अंदर बचपन से बुढ़ापे तक उस कल्चर के अंदर ही हमें जो है ग्रो अप किया जाता है। हमारा जो परसेप्शन है, हमारा जो माइंडसेट है, हमारे जो बिलीव्स है, वो सब कुछ हमारे कल्चर से बहुत ज्यादा बेसिकली अगर मैं बोलूँ परसेंटेज में इन्फ्लुएंस होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा जो कल्चर है जिसके अंदर हम ग्रो अप हुए हैं, जिसके अंदर हमें रेयर अप किया गया है, वो हमारी लाइफ को और हमारे परसेप्शन को, कैसे हम सोचते हैं, कैसे हम इंटरप्रेट करते हैं, वो बहुत ही ज्यादा एक्सटेंट तक बेसिकली इन्फ्लुएंस करता है। नेक्स्ट कम्स स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक्स। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज जो स्टिमुलस है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो सेंसरी इंफॉर्मेशन है, उसकी जो फीचर्स है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, दे विल ऑल्सो डिटरमाइन आवर परसेप्शन। बिकॉज ऑब्वियसली जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी स्टिमुलाई की, वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, पर जब हम परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी वाली एबिलिटी में घुस जाते हैं तो हम स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो वहां पे वो दिक्कत आती है। पर नॉर्मल में अगर आप परसेप्चुअल कॉन्स्टेंसी नहीं कर रहे, नॉर्मल वाली आपकी परसेप्शन चल रही है, आप कॉन्स्टेंटली नहीं सोच रहे एक ही फीचर को, एक ही चीज के बारे में, तो आपका जो स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बहुत अगर आप अटेंशन के साथ देखते हैं या अटेंटिवली सिलेक्ट करते हैं चीजों को, तो स्टिमुलस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, नेक्स्ट कम, so these were the factors। okay, now अब हम हर एक फैक्टर का जो एग्जैक्ट साइकोलॉजिकल टर्म्स में अगर मैं देखूं तो उसका क्या रोल रहेगा वो देखते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस। सो या लेट मी चेंज द कलर। ओके, सो इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन एंड नीड्स। जो मोटिवेशन है किसी चीज को करने के लिए, जो हमारे अंदर एक इंटरेस्ट है जो हमें मोटिवेट करता है उस पर्टिकुलर टास्क या बिहेवियर को शो करने के लिए, और जो हमारी ज़रूरतें हैं वो कैसे हमारे परसेप्शन को इम्पैक्ट करेंगे एंड और हाउ वुड इट इन्फ्लुएंस आवर परसेप्शन इज बेसिकली गिवन हियर। so the important role, it plays an important role in all psychological processes। okay, because हर एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस में मोटिवेशन और नीड इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते ही हैं, तो परसेप्शन में वो चीज कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। okay, so need for certain over here it is certain, a spelling mistake is over here, so I'm really sorry for this। so need for certain things or events, because of our needs, because of our जरूरत किसी एक पर्टिकुलर इवेंट की या जरूरत चीज की, हमारी परसेप्शन बहुत देर तक इन्फ्लुएंस होती है। both influences one's perception। individual who is motivated towards a particular thing, event or process perceives the stimuli related to it more specifically। basically जो हम event या चीज हमें चाहिए या जिसके लिए हम बहुत ज्यादा मोटिवेटेड है, वो वाली चीजों को हम ज्यादा परसीव करते हैं स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर। मोर ओवर ये देखने को मिलता है कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर अगर हम 2 से 3 लोगों को बिठाते हैं, 2 से 3 पार्टिसिपेंट्स लेते हैं, सो व्हाट हैपेंस इज उसी सिचुएशन के अंदर अगर मेरी नीड्स एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के लिए है तो मैं उसकी तरफ उसको ज्यादा अटेंशन पे करूंगी एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन, बिकॉज उसकी मोटिवेटिंग फैक्टर अलग हो सकता है, उसकी नीड अलग हो सकती है। तो हमारी जो नीड और मोटिवेशन
मोटिवेशन है वो एक तरीके से हमें एक दूसरे से डिफरेंट भी बनाता है और हमारी जो परसेप्शन है उसको बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है. फॉर एग्जाम्पल, when one feels hungry, smell of food catches his or her attention more easily as compared to those whose hunger was attended and his or her stomach is full. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे कि दो इंडिविजुअल बैठे हैं क्लासरूम के अंदर, अगर हम स्कूल टाइम को रिमेम्बर करें, तो ब्रेक से पहले या फिर बेसिकली ब्रेक के बाद अगर मान लीजिए आपको आपका एक इंडिविजुअल है, आपका जो फ्रेंड है उसका स्टमक फुल है, ही बेसिकली ही सेटिस्फाइड एंड ही इज नॉट हंग्री, बट यू आर वेरी मच हंग्री, आपको बहुत तेज भूख लगी है और कैंटीन से खुशबू आने लग जाती है, तो आप ज्यादा जल्दी ट्रिगर होंगे एज कंपेयर टू द अदर पर्सन सिटिंग बिहाइंड और असाइड यू. सो दिस इज द थिंग कि मोटिवेशन और नीड बेसिकली आपको डिफरेंशिएट कर देता है दूसरे पर्सन से और आपकी परसेप्शन को भी. आप जल्दी से उस स्मेल को परसीव करोगे, आप उस स्मेल को जल्दी से पकड़ लोगे कि यस हमें भूख लगी है या खाने की खुशबू है, एज कम्पेयर टू द अदर पर्सन हु इज बेसिकली नॉट इंटरेस्टेड इन इट बिकॉज उसकी नीड नहीं है, ही इज नॉट मोटिवेटेड फॉर दैट, ही विल फोकस ऑन योर स्टडीज एंड you are actually imagining or you are perceiving that yes, this is the smell of a food and I'm so hungry. Because you are hungry, you need food for your stomach, you will actually perceive the smell more faster or more energetically or more focusedly than the other person. In a classic experiment by Stanford, hungry participants perceived stimuli related to food more easily to that of non-hungry ones. अगर कोई आपको hungry basically food as a stimuli हो, फूड एज अ एक्सटर्नल फैक्टर हो, तो आप अगर आप हंग्री होंगे तो आप उस स्टिमुलाई को जल्दी से कैचअप करोगे एज कंपेयर टू द अदर पर्सन. Okay, Changizi and Hall demonstrated that one's need for thirst could affect perception. उन्होंने अपने एक एक्सपेरिमेंट में ये भी दिखाया था, चैंगिजी एंड हॉल ने एक बारी, कि जो थर्स्ट होती है, जो हमारी प्यास होती है पानी के लिए, वो भी हमारे परसेप्शन को अफेक्ट कर सकती है. मे बी आप एक पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर बिकॉज यू वर थर्स्टी, you may examine the texture as more rough or as more suffocating of a particular cloth, है ना. So this may affect your perception also. So that's it. Next comes our thing. Let me clear the drawings and move further to the next slide. That is uh, yes, effect of expectation and perceptual expectancy. Basically हम क्या expect करके बैठे हैं एक particular situation से, वो भी कहीं ना कहीं हद तक हमारी perception को influence करता है. Let me show you with the details now that yes, perceptual expectancy की पहली definition समझते हैं, that a person's readiness or tendency to, over here it is to perceive things in a particular way. परसेप्चुअल एक्सपेक्टेंसी मतलब हमारी जो रेडीनेस है या हमारी जो एक टाइम पे बेसिकली ज़रूरत है, एक टेंडेंसी है कि हम एक पर्टिकुलर वे को अपने एक्सपेक्टेड वे में, जो हम एक्सपेक्ट करके बैठे हैं उसी में ही सोचते हैं. घूम फिर के अगर आप देखें तो हम उसको वही सोचेंगे जो हम एक्सपेक्ट करके बैठे हैं, हम उसका नया एंगल या डिफरेंट एंगल नहीं समझने की कोशिश करते. फॉर एग्जाम्पल, by a classic experiment by Brunner and Minturn in 1955, role of expectation in one's perception is basically the first condition you can see in the ambiguous figure of 13 as per number system was shown to the participant. मैं आपको पहले ही describe कर देती हूँ that here are two boxes. Okay, over here in a particular system you will see that uh, here comes 12, then 13, then 14. Okay, then in second condition, when the figure 1 and 3 was shown to you as in accordance or in continuum of alphabets A, B, C, क्योंकि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टार्टिंग और जो एंड वाला जो ब्लॉक है उसके अंदर एक डिजिट लिखा होगा, तो बीच वाला जो है वो भी हमारे लिए एक नंबर होगा जिसको हम 13 प्रोनाउंस कर देते हैं. सेकेंड वाले सिचुएशन में होता है कि हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट अल्फाबेट है वो है ए और लास्ट वाला बी, सॉरी सी, तो हम बीच वाले को चाहे वो 1 और 3 दिख रहा हो फिर भी उसको बी बोल देते हैं. तो दिस इज व्हाट वी वर एक्सपेक्टिंग दैट यस, कि क्योंकि स्टार्टिंग और एंड वाले टर्म से हमें ये समझ में आता है तो हम उसको भी उसी कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं बिकॉज ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन. ओके, सो द फर्स्ट कंडीशन it was perceived as 13, whereas in second condition it was perceived as B. इसको अगर हम और more definedly देखें तो 12
क्योंकि ये ड्राइंग में जब हम हैंड ड्रॉ करते हैं तब जाके ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आता है। फिगर में तो एग्जैक्ट वो अपने अल्फ़ाबेट ही दिखाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें 1 और बिल्कुल नज़दीक में लाके छोड़ दें और फिर C, तो अब यहाँ पे हम A B C ही बोलेंगे और 12 13 14 ही बोलेंगे, बिकॉज ऑफ आर एक्सपेक्टेशन दैट यस अगर स्टार्टिंग और एंड का अल्फ़ाबेट या फिर डिजिट है तो उसके हिसाब से ही चलेगा। Next come our topics, which is basically the stimulus in both the condition. बस सेम दोनों ही कंडीशन में जो यहाँ पे स्टिमुलस आपको देखने को मिला है बीच में 13 और 13 ही था, बट व्हाट हैपेंस इज बट सेम बट डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ड्यू टू एक्सपेक्टेशन, क्योंकि हमारी एक्सपेक्टेशन अलग थी तो हमने अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रेट करा अलग अलग सिचुएशन के अंदर। Now comes a classical study by Bugelski and Elempe in 1961, और उन्होंने फिर से एक बड़ी ही डिफरेंट और बेसिकली ट्रिगरिंग एक फिगर आपको शो करी जिसको हम कहते हैं रैटमैन। तो इट वाज प्रेजेंटेड इन 2 कंडीशन, ठीक है, 2 कंडीशंस में इसको शो किया गया। फर्स्ट कंडीशन वाज पार्टिसिपेंट्स वर एक्सपोज्ड टू एनिमल पिक्चर एंड देन एम्बिगुअस स्टिमुलाई। रैटमैन आपको दिखाया गया और फिर उसके अंदर आपको जो है स्पेसिफिकली एक एनिमल दिखाया गया जो था रैट, ओके। फिर आपको क्या किया, फिर आपको फिर से अपनी कॉमन वाली पिक्चर दिखाई और आपको उसका एक और साइड देखने को मिला जो कि था मैन का। तो ये एक पर्टिकुलरली एक चीज है जिसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन, हमारे जो चीज है बेसिकली हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारे परसेप्शन को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल बीच में एक कॉमन फिगर है, ओके। अब मेरी क्योंकि मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अगर आपसे कोई बोले कि आपको इस पर्टिकुलर फिगर में अगर आपको सिर्फ ये दिखाए और बोले कि क्या आपको इस पर्टिकुलर फिगर में रैट दिखता है, तो आप ये परसीव करोगे, ओके। फिर दूसरी कंडीशन में आपसे बोले इसी पर्टिकुलर फिगर में क्या आपको मैन दिख रहा है, तो आप इसको इस हिसाब से परसीव करोगे। तो दिस इज हाउ व्हेन यू वर एक्सपेक्टेड टू डू सो you basically perceived in that way only, the way you expected it, okay। so expectation actually बहुत एक्सटेंट तक हमें इन्फ्लुएंस करता है। बहुत सारी हमने क्लासिकल स्टडी देख ली है, बुगेल्स की पीछे भी हमने एक और स्टडी देखी थी, तो आप इनको नोट डाउन कर सकते हो और आंसर में एज यू नो एक्स्ट्रा मार्कर आप इसको ले सकते हो, क्योंकि व्हेन यू विल कोट अ एक्सपेरिमेंट you will actually get extra marks than the one who were actually not aware of quoting it, okay। now comes the thing which is effect of emotion, कि इमोशन का एक्चुअल में क्या इफेक्ट होता है हमारे परसेप्शन के ऊपर, okay। let me change the pen once, which is effect of emotion regarding a particular stimuli. Regarding a particular stimuli, emotions can distort one's perception of the reality. यहाँ पे बीच में इमोशन आएगा। एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई के तरफ हमारी क्या इमोशंस हैं, हम हमारे कौन से टाइप का इमोशन उससे जुड़ा हुआ है, वो भी हमारे परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है। इमोशंस डू नॉट ऑलवेज हिंडर one's perception, but what happens is that what happens is emotions ये हमेशा ट्रिगर नहीं करता है, ठीक है, बट वंस परसेप्शन वेयर एज इट फैसिलिटेट ऑल्सो, हमेशा तो नहीं करेगा इन्फ्लुएंस, बट हाँ कुछ हद तक ये कर सकता है। थ्रू अ स्टडी, अगर हम स्टडी के थ्रू देखते हैं, एक स्टडी के थ्रू हमें ये पता चला इफ परसेप्शन टास्क इज इररेलेवेंट टू इमोशन इट हैम्पर्स परफॉर्मेंस। अगर कोई भी जो हमें परसेप्शन टास्क मिला है अगर वो हमारे इमोशंस के लिए जरूरतमंद नहीं है, इट इज इररेलेवेंट अकॉर्डिंग टू आवर इमोशन, तो हमारी जो परफॉर्मेंस आएगी उस पर्टिकुलर टास्क के अंदर तो वो अच्छी नहीं आएगी। मान लीजिए आपको एक पर्टिकुलर गेम जो है वो हमारे लिए टास्क है पर आपको वो पसंद नहीं है, वैसे वैसे उस कैटेगरी के गेम ही नहीं पसंद, तो आपके जो इमोशंस उस पर्टिकुलर गेम से या स्टिमुलाई से जुड़े हुए हैं वो अच्छे नहीं है, दे आर एक्चुअली नॉट पॉजिटिव और मोटिवेटिंग। सो व्हाट हैपेंस इज आपके इमोशंस जो उससे जुड़े हुए हैं उसकी वजह से आपकी जो परफॉर्मेंस होगी वो खराब हो सकती है, ओके। देन ऑन द कॉन्ट्ररी वी सी दैट इफ परसेप्शन टास्क, जो आपको टास्क मिला है वो आपके इमोशंस उससे बहुत अच्छी तरह जुड़े हुए हैं। मान लीजिए एक पर्टिकुलर टास्क है, बचपन से आपको आपके चाइल्डहुड मेमोरीज बहुत अच्छी पॉजिटिव चाइल्डहुड मेमोरीज उससे जुड़ी हुई है, तो आपका आपका जो इमोशन है उसके लिए वो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो बिकॉज आपके इमोशंस बहुत ही रेलिवेंटली उससे अटैच्ड है तो वो आपकी परफॉर्मेंस को बहुत ही अच्छी तरह फैसिलिटेट करता है। एक और चीज अगर हम देखते हैं और एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि अगर हम अपने करियर वो करियर
चूज करते हैं जो आपके इमोशन से जुड़ा होता है, तो आप उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका एक करियर मान लीजिए, आप पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में जाना चाहते हैं और आपको बचपन से उससे बहुत इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग इमोशंस उससे जुड़े हुए हैं, तो आप बहुत ही अच्छा एक्सटेंट तक हम बोल सकते हैं कि आप उस पर्टिकुलर करियर को फुलफिल करने के लिए, वहां तक पहुंचने के लिए बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस भी दिखाओगे, क्योंकि आप उस आपका परसेप्शन बिल्कुल वैसे आपकी इमोशन से इन्फ्लुएंस होता है। So emotions not only affect one's perception but also influence one's working memory. हमारी जो वर्किंग मेमोरी है एक पर्टिकुलर टास्क की, ओके, वर्किंग मेमोरी आप ज़्यादा डिटेल में मेमोरी वाले यूनिट में पढ़ोगे, मैं अभी ज़्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। सो या सो इमोशंस नॉट ओनली अफेक्ट वंस परसेप्शन, हमारी वर्किंग मेमोरी या फिर हमारी मेमोरी को भी बहुत हद तक जो हमारी जो हमारे इमोशंस है वो इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल, आईपीएल फेवरेट टीम ऑफ एम्पायर कैन बी पार्शियल। अगर मान लीजिए एम्पायर का जो है फेवरेट टीम आ गई है आईपीएल के अंदर, तो आपके इमोशन उस पर्टिकुलर टीम के लिए ज्यादा अच्छे हैं, यू आर मोर you feel more attached to that particular team. So what can happen is in the IPL the IPL task, or basically where the cricketers are there, so what happens is the empire may support or may be partial for it, okay, तो वहां पे उसकी पार्शियलिटी या बायस भी देखने को मिल सकता है, बिकॉज आपके इमोशन वहां पे आ जाते हैं, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली आपके इमोशंस वहां पे रोल प्ले करते ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट कम और basically the effect is, let me change the slide, that is effect of stimulus characteristics। जो स्टिमुलस है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो भी बहुत हद तक आपके जो परसेप्शन है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं। ओके, लेट मी शो यू इट इन डिटेल। सो फॉलो अप। सो स्टिमुलस कैरेक्टरिस्टिक, बेसिकली स्टिमुलस की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो भी आपकी सेंसरी इंफॉर्मेशन है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल साउंड, टेस्ट, शेप, कलर या फिर कोई और भी कैरेक्टरिस्टिक, वो आपके परसेप्शन को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। इफ डिफरेंट grabs one's attention comparatively easily as to other stimuli, at last it affects a perception। देखिए, अगर एक स्टिमुलाई रखा है और उसके पास थोड़ी डिफरेंट सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है, तो आप उसके ऊपर ज्यादा अटेंशन पे करते हो, और रिलेटिवली वो जो आप अटेंशन उसके ऊपर प्ले बेसिकली ज्यादा आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, क्योंकि बिकॉज इट हैज बेसिकली, अगर आप देखो बाकी स्टिमुलस से उसके पास अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो आपके लिए वो थोड़ा सा एंटरटेनिंग सा हो जाएगा या फिर डिफरेंट हो जाएगा, तो आप उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दोगे, तो वो आपकी परसेप्शन को बहुत हद तक जो है इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हैवी ट्रक्स हॉर्न, अगर आप देखते हैं, अगर कोई भारी से ट्रक आ रहा है, बेसिकली जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं उनकी जो आवाज है वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है, वो बेसिकली हमारे अटेंशन को खींच लेती है अपने नॉर्मल डूइंग से भी, तो हमारा ध्यान उसकी तरफ बढ़ जाता है, और उसकी वजह से हमारा परसेप्शन भी थोड़ा बहुत चेंज देखो उस टाइम पे हो जाता है। अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट, these characteristics provide a survival purpose, helps one to identify danger। और इस वजह से, क्योंकि हम स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से उसको परसीव करते हैं, तो इस वजह से हमें हमारे हमारे सर्वाइवल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बाहर आपके सामने एक वाइल्ड एनिमल खड़ा है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो रॉर, बेसिकली मान लीजिए बहुत ज्यादा खतरनाक लायन है, वो रॉर कर रहा है, आपकी तरफ चलता आ रहा है, बहुत गुस्से में लग रहा है, तो आपको दिखेगा कि हाँ, इससे मेरी सर्वाइवल को या फिर मेरी लाइफ को डेंजर है, और शायद मुझे अब यहाँ से भाग जाना चाहिए, या फिर कुछ ना कुछ हेल्प ले लेनी चाहिए, या फिर कुछ भी जो करना होगा उस टाइम पे अप्रोप्रिएट एक्शन होगा, आपको वो करना होगा। तो उस टाइम पे जो आपका बेसिकली सर्वाइवल, आपको जिंदा रखने के लिए स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको डेंजर लिखा हुआ है एक पर्टिकुलर जोन पे, अगर आपको डेंजर की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता है कि हाँ, ये जो यहाँ पे सिंबल बना है इसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें दिखाती है कि यहाँ से आगे जाना गलत होगा, डेंजरस होगा हमारी लाइफ के लिए, तो आप ऑब्वियस से आप उसको अवॉइड करोगे, और आपकी परसेप्शन उस हिसाब से क्योंकि बनी हुई है, आपको पता है कि हाँ ये आपको आपने पहले भी इंटरप्रेट कर रखा है इसका मीनिंग, आपके पास एक मीनिंग है दिमाग में कि हाँ डेंजर का सिंबल है तो इससे आगे नहीं जाना है, तो आपके सर्वाइवल पर्पस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्टिमुलस की कैरेक्टरिस्टिक। ओके, नेक्स्ट कम आर
यस, इफेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, हमारा जो एक्सपीरियंस है उससे कैसे होता है। प्रायर एक्सपीरियंस, बेसिकली आपको जो पहले से एक्सपीरियंस है, प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल टू इंटरप्रेट द स्टिमुलाई। और वैसे अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है उसी कंडीशन में वैसे स्टिमुलाई में, तो आप ज्यादा जल्दी से उसको इंटरप्रेट कर पाओगे एज कम्पेयर टू द अदर्स। इट शेप्स वंस परसेप्शन, ऑब्वियसली एक्सपीरियंस शेप्स वंस perception. Okay, this is the last slide or the last topic of this particular unit. Okay, so the please maintain the flow now. That is the effect of culture, कि एक इंडिविजुअल या एक पर्सन का जो कल्चर है वो कैसे उसके परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करता है या कितनी हद तक कर सकता है। दैट इज व्हाट वी वुड बी अंडरस्टैंडिंग इन दिस पर्टिकुलर बेसिकली स्लाइड। ओके, सो आइडियाज ऑफ कल्चर और बेसिकली सोशल बिहेवियर और सोशल ग्रुप, हमारे जो आइडियाज है, हमारे जो बिलीव्स बने हुए हैं हमारे कल्चर को लेके, या एक सोसाइटी के अंदर हमारा कैसा सोशल बिहेवियर होना चाहिए, या एक सोशल ग्रुप के लिए जिसके अंदर हम एग्जिस्ट करते हैं, तो वो हमारे परसेप्शन को बहुत हद तक इन्फ्लुएंस करता है। इट प्रोवाइड्स वन विद स्ट्रक्चर, गाइडलाइंस, एक्सपेक्टेशंस, रूल्स, क्योंकि हमारे कल्चर से हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर दिख जाता है दैट यस, इन आवर कल्चर वी हैव टू behave like this, or in our culture if this particular festival comes we have this tradition, we have these rules and regulations, these are the guidelines, or this is what expected by my parents in this particular culture. So culture is basically very much important for one's perception too. It helps one understand and interpret behavior. आपका जो कल्चर है, आप मान लीजिए आपका कल्चर जो है, आपकी फैमिली का ऐसा कल्चर है कि आपको बाहर का एक्सपोजर बहुत देना चाहते हैं, वो आपके कल्चर में बहुत ज्यादा एक्सपोजर है, आप बहुत सारी दुनिया देख चुके हो, आपको बहुत कुछ आपके कल्चर से मिला है, तो एक तरीके से आप लोगों के बिहेवियर को भी एक तरफ एक टाइम पे इंटरप्रेट करने की एबिलिटी रख पाते हो। Ethnographic studies, basically relating to the specific description of people, basically states that, just a second, I will resume it. So yes, ethnographic studies, which are basically related to the scientific description of people with their customs, habits, mutual differences. Basically ethnography graphic studies जो हैं वो जो हमारे एक इंडिविजुअल के जो हैबिट्स हैं, उनकी कस्टम्स क्या हैं, उनके अंदर म्यूचुअल डिफरेंसेस क्या हैं, उनके कल्चर की जो बेसिकली ये सारी चीजें जो कल्चर इन्फ्लुएंस करता है उसकी स्टडीज करते हैं। ओके, सो ये साइंटिफिक स्टडी के अंदर आ जाता है। तो एथनोग्राफिक स्टडीज जो हमें बताती हैं दैट इट स्टेट्स दैट देयर आर कल्चरल डिफरेंसेस इन सोशल अंडरस्टैंडिंग्स, इंटरप्रिटेशन एंड रिस्पॉन्स टू बिहेवियर एंड इमोशन। सो व्हाट हैपेंस इज एथनोग्राफिक स्टडीज जो हैं वो बताती हैं कि बिकॉज ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस जो इंडिविजुअल है, क्योंकि उनके कल्चर डिफरेंट है या उनको जो रेयर होते हैं वो अपने कल्चर के अंदर जब वो ग्रो करते हैं, तो बिकॉज ऑफ कल्चर उनका जो इंटरप्रिटेशन है सिचुएशन के अंदर वो भी बहुत हद तक डिफर करता है, और जो उनका रिस्पॉन्स है, उनका जो बिहेवियर है, उनके जो इमोशंस वो आते हैं, वो सब कुछ बहुत हद तक डिफर करता है, एक दूसरे से अलग होता है, ऑल बिकॉज ऑफ द टर्म कल्चर। कल्चर की वजह से हमारी बहुत सारी चीजें इन्फ्लुएंस होती हैं। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टिमुलाई चेंजेस विद चेंज इन कल्चर, जैसे जैसे कल्चर चेंज होता जाता है इंडिविजुअल का, तो वैसे वैसे उनका जो इंटरप्रिटेशन है, उनकी जो समझ है एक पर्टिकुलर स्टिमुलाई की, वो भी बदलती है। एग्जाम्पल, हैंड जेस्टर रेफरिंग टू परफेक्ट। अगर हम परफेक्ट का एक सिंबल बनाते हैं, हैंड जेस्टर करते हैं, जैसे कि हम इंडियंस करते हैं, तो हमारे लिए तो वो उसका मतलब होता है ब्यूटीफुल या फिर परफेक्ट। लेकिन मेडिटेरियन कंट्रीज के अंदर उसको एक तरीके से एक सेक्सुअल इंसल्ट माना जाता है, दैट यू हैव बीन इंसल्टेड in terms of your that you have been insulted. एंड जापान के अंदर उस पर्टिकुलर सिंबल को, जिसके अंदर फिंगर्स, दो फिंगर, थंब और अपने स्टार्टिंग वाली फिंगर को ज्वाइन करते हैं और तीन उंगली बाहर निकालते हैं, वी से यस यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तो उसी सिंबल को जापान के अंदर मनी से डिनोट किया जाता है, दैट यस इफ यू शो दैट हैंड जेस्टर यू आर एक्चुअली रेफरिंग टू मनी। तो एक ही चीज की, एक ही जेस्चर की, एक ही बिहेवियर का अलग अलग तरीके से इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है अलग अलग कल्चर के अंदर। सो दिस वाज द इफेक्ट ऑफ कल्चर. So yes guys, now the part 3 has also been end, and yes, the unit has been completed. Thanks a lot guys for staying tuned for such a long time, and yes, if you find the content or the lecture useful, worthy, do subscribe, like and share.
Also, you can click here for your more content or more videos and more lectures. So guys, thanks a lot. Stay tuned for more updates, and yes, do subscribe, like and share the channel. Yes. Bye bye.